ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ USA ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, UK ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, USA ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ UK ਔਰ USA ਦੋਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਡਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਪਲਕਿਨ ਮੈਮ AVM ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਮ ਆਪਾਂ US ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ स्टूडेंट ने ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। यूएसए के अंदर सबसे ज़्यादा जो स्पेसिफिकली चीज़ देखी जाती है वो ये है कि बच्चा विद आइल्स और विदाउट आइल्स दोनों के थ्रू प्लान कर सकता है। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है और यूएसए और यूके दोनों कंट्रीज़ में आप एलिजिबल होते हैं। ਜੇਕਰ USA ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ UK ਜਾਣਾ, ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰੇਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ +2 ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ 2024 ਜਾਂ 23 ਪਾਸ ਆਊਟ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਇਨਟੇਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ? ਆਈਲੈਟਸ, ਟੋਫਲ ਜਾਂ PT ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? तो अगर मैं 2024 पास आउट बच्चों की बात करूं तो सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी, क्योंकि पैन इंडिया इस बार जो 2024 में रिजल्ट आया है 12वीं के बच्चों का वो बहुत ही अच्छा आया है एंड वी आर रियली वेरी इम्प्रेस्ड। तो रही बात 2024 पास आउट स्टूडेंट्स के लिए, तो बच्चे अपना जो अपकमिंग इनटेक ले सकते हैं वो है जुलाई + सितंबर। जी हाँ, अगर आपको ईजिली अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो हम आपको जुलाई इनटेक में वीज़ा दिलवा देंगे। अगर इनकेस नहीं होता तो आपको सितंबर इनटेक में वीज़ा मिल जाएगा और आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੁਲਾਈ ਔਰ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ +2 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਟੋਫਲ ਕਰ ਲਿਆ, PT ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਹੋਣ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਵਿਦਾਊਟ ਆਈਲੈਟਸ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? बिल्कुल, सबसे पहले तो बच्चा एक चीज़ से बहुत घबराता है कि मैं आइल्स करूँ, PT करूँ, टॉफल, डुओलिंगो, क्या कौन सा इंग्लिश का जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो देना चाहिए। और दूसरी बात, बच्चा अगर मन बनाता भी है ना, कि मैंने आइल्स करना है, मैंने PT करना है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बच्चे के फर्स्ट अटैम्प्ट में बैंड स्कोर्स नहीं आते तो बच्चा निराश या डिमोटिवेट हो जाता है और उसकी हिम्मत नहीं होती कि मैं दूसरा अटैम्प्ट भी दे सकूँ। तो उसके लिए बच्चे को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि USA में आप विदाउट विदाउट PT या कोई भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बिना अपनी फाइल अप्लाई कर सकते हैं। और ये सबसे बेस्ट चीज़ है, क्योंकि विदाउट आइल्स आप एक कंट्री में जा रहे हैं और लोगों की ड्रीम कंट्री होती है USA, है ना। मुझे कुछ भी करके USA भेज दो, वहाँ जाना है, वहाँ का वीज़ा चाहिए। आपको आपकी ड्रीम कंट्री भेजा जा रहा है बिना कोई इंग्लिश का एग्ज़ाम देने दिए बिना बेसिकली, तो वो उससे बेस्ट चीज़ कोई भी नहीं हो सकती। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ AVM ਹਰ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਅਬਰੋਡ ਦਾ ਜਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਮ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵਾਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸਟੱਡੀ 'ਚ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ, +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ, 2-3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਗੈਪ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ USA ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਰੀਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ USA ਦਾ? तो सबसे पहली बात तो जो USA है वो गैप आपका एक्सेप्ट कर लेता है इवन ऑफ 10 ईयर्स। यानी अगर आपका 8, 9, 10 साल का भी गैप है तो आप अपनी फाइल इजीली अप्लाई कर सकते हो। हाँ, लेकिन उस गैप की जस्टिफिकेशन आपको देनी पड़ेगी कि आपने उस दौरान क्या किया। सेकेंड चीज़ जो आप रिफ्यूज़ल पूछ रहे थे, रिफ्यूज़ल में क्या रहता है कि रिफ्यूज़ल अगर आपने किसी एक कंट्री से पहले ही रिफ्यूज़ल लिया हुआ है ना, आप प्लान बहुत पहले से कर रहे हो बाहर जाने का, मल्टीपल रिफ्यूज़ल्स हैं या ऑलरेडी इवन USA से भी रिफ्यूज़ड हो, तो भी आप चिंता ना करें, क्योंकि आपकी जो फाइल है वो डिपेंड करती है कि आपने अपना DS 160 फॉर्म कैसे भरा है, वो तो ठीक है। और सेकंड पॉइंट पे क्या मैटर करता है, आपने अपना इंटरव्यू कैसे दिया है, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज वहाँ कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। अगर उन्हें हल्का सा भी शक होता है ना कि ये बंदा जेन्युइन नहीं है, ये जेन्युइन इंटेंशन से बाहर नहीं जा रहा, वो वीज़ा नहीं देंगे, वो आपको कोई भी रीज़न नहीं देते, वो सीधा एक वाइट स्लिप पकड़ा देते हैं। तो वो चीज़ ना हो उसके लिए हमारी टीम यानी AVM ग्लोबल की टीम आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देती है, आपको टिप्स और स्ट्रैटेजीज बताई जाती हैं कि आपको ये करना है और ये नहीं करना, है ना। ये चीज़ें क्लियर होने के बाद आप लोगों को ऑटोमेटिकली पता लग जाता है कि कैसे आप अपना वीज़ा ले सकते हैं।
ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਹੈ ਨਾ, ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਡਰੈਸ ਸੈਂਸ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ USA ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? देखो, सबसे पहली बात, आपका जो इंटरव्यू है ना सिर्फ 1 से 1.5 मिनट का होता है, वो भी शायद मैं ज़्यादा बता रही हूँ। तो आप एक चीज़ खुद कॉमन सेंस लगा के सोचो, क्या वो 1 मिनट में ये चीज़ जज करेगा कि आपकी इंग्लिश कैसी है? ऑब्वियसली नहीं, है ना। वो ये चीज़ देखेंगे कि आप कितने जेन्युइन हो, आपने कपड़े कैसे डाले हैं, आप चल के कैसे आ रहे हो, आप बैठे कैसे हो, आप बात कैसे कर रहे हो। पूरी जो एम्बेसी, आपको पता है हर एक चीज़ कैमरा से आजकल सराउंडेड है, वो आपको मॉनिटर कर रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं, है ना। आपका इंटरव्यू जैसे ही आप एंट्री लेते हो ना स्टार्ट हो जाता है। आपने सिर्फ वो 1 मिनट का इंटरव्यू नहीं देना, आपका इंटरव्यू जैसे ही आप वहाँ एंट्री लेते हो वो चीज़ स्टार्ट हो जाती है। तो उस चीज़ में आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड कपड़े डाल के जाएं, यानी कि आपने कुछ तड़क भड़क नहीं डालना, आप कोई गोवा नहीं जा रहे, है ना। फूल पत्ते बने हुए टी शर्ट्स नहीं डालनी, आपने कुछ भड़कीले कलर्स नहीं डालने, आपको बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड क्लासी बन के जाना है, वहाँ पे बिल्कुल सिंपल बन के जाना है। ऑटोमेटिकली बंदे को पता लग जाता है कि आप बिल्कुल सिंप्लिसिटी से आए हैं, तो डेफिनेटली कोई ना कोई बात आपकी बॉडी लैंग्वेज कन्वे कर रही है। सेकेंड चीज़, आपकी पर्सनैलिटी, आप वहाँ कैसे बैठे हो, आप वहाँ पे किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, उस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए। और एक टिप मैं आपको दूंगी, अपने साथ एक वाटर बॉटल कैरी ज़रूर करें, बिकॉज वहाँ आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको थोड़ी सी एक रेज वाली फीलिंग आ सकती है, गुस्सा आ सकता है, तो यू नीड टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, कि आप एकदम काम रहें। और रही बात इंटरव्यू क्वेश्चंस की, तो मेन जो मुद्दा है कि क्या पूछते हैं वो, तो वो 3 से 4 सवाल है जिनको घुमा फिरा के आपसे पूछता है। आपने एक कॉलेज क्यों चुना, आपने ये प्रोविंस क्यों चुना, आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चुनी, आप यूएसए क्या करने जा रहे हो, वो आपकी ड्रीम कंट्री क्यों है। दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो इंटरव्यूअर है वो आपसे पूछेगा, एंड अकॉर्डिंगली आपको उस चीज़ का आंसर करना है एंड अपना वीज़ा ग्रांट करवाना है। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ AVM ਗਲੋਬਲ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ USA ਦਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 4 5 7 ਦਿਨ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ AVM ਗਲੋਬਲ ਕੋਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਜਾਂ ਸੈਕਟਰ 9C ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲਕਿਨ ਮੈਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੂਰਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੀਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਲੈਟਸ ਟੋਫਲ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, PT ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਵਿਦਾਊਟ ਆਈਲੈਟਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ USA ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਮ USA ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਲੈਵਲ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਹੋਣ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ उस स्टडी का स्टूडेंट को बेनिफिट भी होवे आने वाले टाइम दे विच। बिल्कुल। अब एक बच्चा जो पर्टिकुलरली जिसने 12वीं करी हुई है ना, 12th पास आउट है, तो बच्चा वहाँ पे बैचलर्स करेगा, या अगर कोई बैचलर्स ऑलरेडी यहाँ पे करी हुई है तो वो मास्टर्स करेगा। अब इसमें भी अलग अलग स्ट्रीम्स डिवाइडेड हैं। लेट्स से आप आर्ट स्ट्रीम से हैं तो आपको हॉस्पिटैलिटी, होटल मैनेजमेंट, ट्रैवल एंड टूरिज्म, ऐसे कुछ स्ट्रीम्स में स्पेशलाइजेशंस मिल जाती हैं। और अगर मैं बात करूँ कॉमर्स वाले बच्चों को, तो उन्हें बिजनेस, फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स, ऐसे से कुछ प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस हैं जो मिल जाते हैं, है ना। अब इसमें जो क्वेश्चन आता है कि कोर्स अच्छा कौन सा है ना, और कौन सा कोर्स जिसकी वैल्यू है, कौन सा कोर्स आने वाले टाइम में आपको अच्छे ग्रीन कार्ड वाले ऑप्शन पे लेके जा सकता है। तो उस चीज़ में क्या होता है, आपकी जो प्रोफाइल है ना, आपके जो परसेंटेज है वो मैटर करते हैं। देखो USA आप जा रहे हो, USA से कनाडा बच्चा क्या करता है, USA जाता है पहले इनिशियली, फिर उसके बाद USA से कनाडा चला जाता है, बिकॉज दोनों सिस्टर कंट्रीज
हैं, तो उसमें कोई बच्चे होते हैं कि हमें कोई भी कोर्स दिला दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है यूएसए से पढ़ना एंड देन कनाडा शिफ्ट हो जाना, ठीक है, एक्सेप्टेबल। कई लोग कहते हैं हमें यूएसए में ही सेटल होना है, वहीं पे जॉब चाहिए, तो उस चीज़ के लिए भी यूएसए एक बहुत अच्छी कंट्री है। इसका रीज़न बड़ी बड़ी कंपनी के हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन, है ना, फ्लिपकार्ट, याहू, फेसबुक। तो ये कंपनीज़ क्या करती हैं, ये टैलेंट हायर करती हैं, है ना। अगर आप एक स्पेसिफिक फील्ड में टैलेंटेड हैं तो ये कंपनी आपको डेफिनेटली हायर करेगी। उसके लिए जो आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी होगी, कई बार वो लोग प्लेसमेंट्स ऑफर कर देते हैं। तो कई बार हम लोगों को टाइप्स की ज़रूरत पड़ती है, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, तो उसके थ्रू आप इजीली अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट ले सकते हैं, आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं। यू कैन गेट लैक्स भी नहीं, करोर्स के पैकेजेस, विच इज़ ओनली पॉसिबल इन यूएसए। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਬਰਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ PR ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਮ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਬੈਸਟ ਹੈਗਾ? USA ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਔਰ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਫਰਾਂਸ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਦੋਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਅਪलाई कर सकता है और कितना का प्रोसेसिंग टाइम ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ है? बिल्कुल। सबसे पहले जैसे हम यूएसए की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो अमेरिका से स्टार्ट करते हैं। वेल, अमेरिका में आपको पता है अभी एक क्रिकेट का मैच चल रहा है बेसिकली, जिसको T20 IPL कह रहे हैं, है ना। तो इस IPL के टिकट्स के बिहाफ पे आपको बहुत इजीली वीज़ा मिल जाएगा। अब कई लोग इसमें क्वेश्चन उठा रहे हैं कि मैम अपॉइंटमेंट टिकट, क्योंकि जो T20 IPL है वो 1 जून से स्टार्ट है और 24 जून को ख़त्म है ना। तो इतनी जल्दी मैच जून में स्टार्ट है, हम अपॉइंटमेंट कब दिलाएंगे, कब फाइल लगाएंगे, तो उसकी भी आप बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि अपॉइंटमेंट हमारे पास अवेलेबल हैं। हम आपको अपॉइंटमेंट अगले ही 10 दिन का भी स्लॉट दिलवा सकते हैं। उसके लिए हम प्रॉपर पहले आपको रेडी करेंगे, आपकी फ़ाइल तैयार करेंगे, आपको इंटरव्यू के लिए रेडी करेंगे, क्योंकि इसमें इंटरव्यू आप किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हो। कोई नेसेसरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में देना है या जो आपकी बेसिक लैंग्वेज है उसमें देना है। आप जिसमें चाहें अपनी मातृभाषा में आप अपना इंटरव्यू दे सकते हैं एंड उसके बिहाफ पे आप USA का वीज़ा ले सकते हो। लेकिन हाँ, लेट मी टेल यू वन थिंग, सीट्स बहुत ही लिमिटेड हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है मिड ऑफ मई चल रहा है, जून में IPL स्टार्ट है, 24 जून को IPL ख़त्म है, तो उससे पहले वी नीड टू गेट द वीज़ा डन एंड अकॉर्डिंगली आपकी जो प्रोसेस है वो भी हमें कंप्लीट करनी है। सेकेंड, जैसे आप फ्रांस का पूछ रहे थे, तो फ्रांस में भी ये चीज़ है कि फ्रांस में अभी ओलंपिक्स कंडक्ट हो रहे हैं, है ना। जो हमारे कंडक्ट हो रहे हैं बेसिकली 24 जुलाई को, एंड जो एंड हो रहे हैं 9 अगस्त को। तो 24 जुलाई से लेकिन अगस्त तक जो हमारे पास सीट्स हैं वो सीट्स हैं अराउंड 700 जो हम लोगों ने परचेज़ की हैं। तो वो सीट्स डेली बेसिस पे भरती जा रही हैं। अगर आप उसमें भी इंटरेस्टेड हैं तो सर्टेनली ऑफिस विजिट करो, हम आपको फ्रांस का वीज़ा दिलवाएंगे, यूरोप का वीज़ा दिलवाएंगे, शेनिगन वीज़ा दिलवाएंगे विदाउट एनी हैसल। आप इजीली अपना वीज़ा ग्रांट करवा सकते हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਚ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਡਸ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਚ ਹੈ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ प्रोफाइल किस तरह की होनी चाहिए जो अप्लाई कर रहे हैं? तो नहीं भी हरेक ही कर सकता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। अब एजेंट क्या करते हैं, एजेंट के पास मैचेस की टिकट्स होती हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ टिकट के बिहाफ पे आपका वीज़ा अप्लाई कर देते हैं, फाइल में और कुछ नहीं लगाते। उन्हें कॉन्फिडेंस भी नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि जी वीज़ा निकल जाएगा क्योंकि टिकट बाय करी हुई है। ऐसा नहीं होता, है ना। देखो, टिकट 80% रोल प्ले करती है, डेफिनेटली करती है, लेकिन 20% आप किस तरीके से अपनी फाइल प्रेजेंट कर रहे हो वो चीज़ मैटर करती है। अब प्रेजेंटेशन में क्या आता है, फाइल देखो, आपको हमारे जैसे प्रोफेशनल्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है।
डेफिनेटली, ताकि आपकी फाइल को प्रोफेशनली बनाया जाए, विद द हेल्प ऑफ लॉयर्स बनाया जाए, प्रॉपर उसमें टेक्निकलिटीज हो और आपका वीज़ा निकले। नहीं तो आप एक चीज़ बताओ, आजकल गूगल यूट्यूब के ज़माने में बंदा खुद सर्च करता है कि हाउ टू अप्लाई फॉर वीज़ा, बंदे को पता लग जाता है इस तरीके से ऐसे करना, डॉक्यूमेंट लगाने, और जी है ना, आप सोचते हो कि आपका काम हो जाएगा। और होता क्या है, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, एंड देन इन द एंड व्हाट हैपेंस इज दे गेट द रिफ्यूजल। तो उस चीज़ के लिए डियर क्या होता है कि जो हमारे पास प्रॉपर लॉयर्स हैं ना, वो आपकी फाइल में टेक्निकलिटीज डालते हैं। हमारे पास कंटेंट राइटर्स हैं, हम जिनको पे कर रहे हैं, है ना, वो कंटेंट राइटर्स आपकी एसओपीज, कवरिंग लेटर्स बनाते हैं, तैयार करते हैं। तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन आपकी बनाई जाती है। काम सिर्फ क्लिक करके डॉक्यूमेंट अपलोड करने का नहीं होता। लोग इसी चीज़ के ऊपर 20-20 लाख रुपए नहीं दे रहे। लोग मार्केट में इतना ज़्यादा रेट चल रहा है, हरियाणा पंजाब में आप सुनते ही हैं, लोग 20-20, 25-25 लाख रुपए देते हैं कि हमें किसी भी तरीके कनाडा भेज दो, यूएस से भेज दो, यूके भेज दो। तो वो चीज़ होती है, लोग सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं दे रहे, प्रॉपर प्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो डिपेंड करती है आप किस एजेंट से फाइल लगवा रहे हो और किस तरीके की वो फाइल बना के लगा रहा है। ਇਹ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ AVM ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਜੇ ਆਫਿਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੂਗੀ ਔਰ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਮ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, कोई खेतीबाड़ी वाला होवे, किहड़े हैगे जिहड़े इस दे लई अप्लाई कर सकदे हैं? कोई दिक्कत नहीं है अगर आप जॉब कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप एग्रीकल्चर में हैं, इवन कोई दिक्कत नहीं है अगर आप फ्री हैं। ठीक है, आपकी फाइल को प्रेजेंट करना हमारा काम है, हम अपने अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे। बट अगर आप स्पेसिफिकली किसी चीज़ में है तो मैं आपको एक बार डॉक्यूमेंट का भी आइडिया दे देती हूँ। अगर आप एग्रीकल्चर में है तो मुझे आपका J फॉर्म, फरत, इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में है तो मुझे आपका फॉर्म 16, NOC, सैलरी स्लिप्स चाहिए। अगर आपका अपना बिजनेस है तो मुझे बिजनेस के प्रूफ, आपका GST, हाँ ना, लाइसेंस, और जो भी आपकी MSME रजिस्ट्रेशन कुछ भी हो गया, ये चीज़ों में एज अ प्रूफ मुझे चाहिए होता है। बट अगर कोई बच्चा जिसका चैलेंज आता है कि वो फ्री है, तो उस केस में जो हम आपका कवरिंग लेटर है वो ही इतना स्ट्रॉन्ग बना देते हैं आपकी, प्लस ये टिकट साथ में लगा देते हैं कि वीज़ा ऑफिसर को हमने ये चीज़ दिखानी है कि हम किसी रीज़न से बाहर जा रहे हैं, हमारा कोई स्पेसिफिक रीज़न है, तो वो रीज़न हमारे जो लॉयर्स हैं वो उस फाइल के अंदर डालते हैं, अकॉर्डिंगली आपको वीज़ा मिलता है। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਲੋਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੁਲਾਈ ਜਾਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਸਲੋਟਸ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂट्स ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। वेल अगर मैं स्लॉट्स की बात करूँ तो स्लॉट्स में क्या होता है कि लोगों ने पहले ही खरीद के रखे होते हैं। कई एजेंट्स हैं जो पहले ही खरीद लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, जब सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा होती है तो इनके जो दाम है वो लाखों छूते हैं। 1-1, 1.5 लाख के भी लोग बेचते हैं, उस पॉइंट पे भी होता है। तो हमने वही चीज़ की हुई है, हमने आपके जो स्लॉट्स हैं वो हमने बेसिकली इंटरव्यू के जो स्लॉट्स हैं वो पहले ही बाय किए हुए हैं, जिसके भी हाफ पे हमारे पास अगर कोई एलिजिबल कैंडिडेट आ रहा है जिसका हमें लगता है कि वीज़ा निकलेगा, हम हर किसी को येस नहीं करते। अगेन आई विल टेल यू, हम कोई सपने नहीं बेच रहे, वी आर नॉट सेलिंग ड्रीम्स, राइट। हम सिर्फ वही फाइल उठाते हैं जो एलिजिबल है। अगर हमें लगता है कि आपकी फाइल एलिजिबल है तो ही उस पर मेहनत करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग आपका जो वीज़ा है वो ग्रांट करवा के देंगे। अगर इनकेस हमें लगता है कि नहीं वीज़ा नहीं निकलेगा, हम आपके मुंह पे बोल देंगे कि 50-50 चांसेस हैं, या इस तरीके से है जी, यहाँ पे कमी है, यहाँ कमी है, अब आप देख लो। आगे क्लाइंट की अपनी मर्जी कि उसने फाइल देनी है या नहीं देनी, तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ USA ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। AVM ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਲਕਿਨ ਮੈਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 2024 ਪਾਸ ਆਊਟ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, PT ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਹਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਆਈਲੈਟਸ PT ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬੁਕਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ USA ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 99% ਚਾਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਆਊਟ ਆਈਲੈਟਸ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ
ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ USA ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ USA ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ, ਫਰਾਂਸ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਾਂ USA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਮ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ UK ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ स्टूडेंट ने ਜਿਹੜੇ जा सकते हैं इस टाइम? यूके में अगर हम स्टडी वीज़ा की बात करें तो यूके में भी स्टडी वीज़ा में वो विद आइल्स और विदाउट आइल्स एक्सेप्ट करता है। जैसे हमारे पास कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके थ्रू हम आपकी एडमिशन करा देते हैं, लेकिन मुझे हाँ, अगर कोई बच्चा विदाउट आइल्स है तो उसमें जो एलिजिबिलिटी है वो क्या चाहिए, बच्चे का जो बोर्ड है वो CBSE बोर्ड होना चाहिए, लास्ट क्वालिफिकेशन 2021 पास आउट होना चाहिए, और बच्चे के जो क्वालिफिकेशन में मार्क्स हैं वो 70% से ऊपर, प्लस इंग्लिश में मुझे 60% to 65% से ऊपर आपके स्कोर्स चाहिए। तो इस बिहाफ पे हम आपका विदाउट आइल्स करवा देते हैं। अगर आपने विद आइल्स जाना है तो विद आइल्स में जो आपकी बैंड स्कोर की जो एलिजिबिलिटी है वो है 6 नॉट लेस देन 5.5 इन 1 और 2 मॉड्यूल्स चल जाएगा। तो इस बिहाफ पे आपको वीज़ा मिल जाता है एंड अकॉर्डिंगली आप यूके के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन हाँ, यूके ने अभी जैसे एक मेजर चेंज किया है कि वो स्पाउस नहीं एक्सेप्ट कर रहा, तो उसमें क्या हुआ है, इनटेक्स जो लोग हैं जो इंडिविजुअली अप्लाई कर रहे हैं और जो इनटेक्स हैं वो जल्दी भरते जा रहे हैं। तो इसीलिए यूके में क्या है, यूके में सितंबर इनटेक में 90% सीट्स आज की डेट में फुल हो चुकी हैं। तो अगर आप यूके का प्लान कर रहे हैं तो आप अपनी फ़ाइल को जल्दी से अप्लाई करें, और क्योंकि हमारे पास चांस कम है, अगर सितंबर इनटेक हाथ से निकल जाता है तो जैन इनटेक बचेगा। जैन का मतलब 2025, हमें नहीं पता यूके कौन सी नई टर्म एंड कंडीशन डाल देगा एंड उसके बिहाफ पे दिक्कत हो जाएगी। सो प्लान वाइजली एंड अकॉर्डिंगली अप्लाई। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ UK ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ USA ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਸਟੱਡੀ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਗੀ AVM ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਲਕਿ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।